Good evening and warm welcome to all the participants. This is session number 157 on Wise Views Leadership Conversations. We are extremely delighted to have you with us. Please join me in welcoming Mr. Samrat Maulik. Welcome, Mr. Samrat. Thank you, sir. Mr. Samrat, thank you so much for agreeing to join with us and speak on your cycling. And we hope to learn a lot from your efforts to create awareness on various important issues that concern us on environment. Without much ado, I would like to actually share my screen and introduce you, and then I'll call you back for your opening remarks. This is going to be very, very different compared to various other leadership conversations we have had. This is an offbeat kind of a leader that we have, a leader who is trying to spread awareness on cycling, through cycling on environment and other issues. The journey of purpose, cycling for change across borders. This is the topic. The introduction and opening remarks will take about 25 minutes, and then we'll have 40 minutes or more for the Q&A. This is the river cyclist, Mr. Samrat Maulik. We are extremely delighted to have you. It's my pleasure to introduce Mr. Samrat Maulik, and this will take, I think, about 4 minutes or so. Let me attempt to summarize to the extent possible. Mr. Samrat Maulik is a person who is embodying the spirit of adventure and the commitment to social and environmental issues. He left behind a very interesting and lucrative corporate career, and then he embarked on this journey. And he has cycled roughly around 17,000 plus kilometers to raise awareness on critical issues that are concerning us. This is not a mean task. He has got major achievements and milestones, and I'll go one by one briefly. He holds the India Book of Records and then the Gangotri to Bay of Bengal, Bangladesh, which he cycled 3,000 kilometers, and to focus on the importance of saving Ganga River, earning a place in the India Book of Records. He did Leh to Kanyakumari, that's about 5,200 kilometers. This is about saving rivers and conserving water. Dhaka to multiple regions, 3,200 kilometers, covering 21 districts in Bangladesh and 5 states in India, focusing on diabetes prevention and care, impacting several communities. He has undertaken treks to Uttarakhand, Sikkim, West Bengal, and Arunachal Pradesh to advocate for a greener planet and the preservation of flora and fauna. He participated in Ganga Volga expedition in Russia, spoke at various business and environmental forums, universities about river conservation, earning recognition from the Russian embassy in India. He did the Sri Lankan expedition, promoting cleaner environments and the preservation of water bodies, flag bearer of Eat Right India campaign by FSSAI, Government of India. He played a significant role in promoting healthy eating habits. Many rural communities have adopted cleaner and greener practices around riverbeds, water bodies, and forests. They have also implemented measures to reduce water wastage in agriculture. This is the impact that he has created. Among urban populations, the impact is they have started following water conservation guidelines, leading to more sustainable water use. We will hear interesting stories around these impact, both at rural level as well as urban level. His organization, Eco Savior Foundation, through which he participated in numerous awareness activities, collaborating with municipal bodies, local authorities, and central government agencies like Nehru Yuva Kendra. His efforts have contributed to the preservation of many rivers and water bodies. This is a fantastic contribution and impact. Similarly, in disaster management and relief, he has done a lot. He is running a campaign, what is called water literacy movement across schools in West Bengal and northeastern states, educating the children on water conservation and environmental sensitivity. He has been obviously featured in various newspapers, media, electronic and digital, and is participated in various panels, sharing, discussing his thoughts to various levels of audience in India. He is a prolific writer as well. He's published 2 books, Dog Part 1 and Dog Part 2, which talks about his experiences and interactions with people who have influenced his philosophy on life. This is like reflecting inside out and outside in. That's very interesting. We'll hear a little more about this book as well. Mr. Samrat Maulik's journey is a testament to the power of passion and dedication. Obviously, leaving a corporate career and working on creating awareness through cycling has to be a result of an extreme case of passion and dedication. His efforts in promoting environmental and social causes, they continue to inspire many and create a lasting impact on communities across the globe. Fantastic, sir. Thank you so much once again for joining us.
And I will take one more moment to introduce Professor R. Prasad. He is the Senior Director of Academic Wing at ICFI Group. He comes with 3 decades of rich experience. He holds BTech from IIT Bombay and PGDM from IIM Kolkata. Welcome, Professor Prasad. Thank you so much for joining. Now we are all set to learn from the river cyclist. This is a very interesting and intriguing journey, how one can take this arduous route of raising awareness levels of what one believes is very, very important. And truly, it is extremely important for all of us. These critical issues will be analyzed and explained to us. I request Mr. Samrat Maulik to start his opening remarks. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much for giving me such an opportunity. I will speak in Hindi. I'll share my experiences in Hindi because I prefer. That's why. Thank you very much. I have only 20 minutes in my hand. So I will cut short my entire experiences within that time frame. Many just you have mentioned that I left my job, corporate job, in 2016. But why? रीजन नहीं था बिकॉज सिंस 2003 से मैं कंटिन्यूअसली फॉर जस्ट फॉर एडवेंचर मैं जा रहा था उत्तराखंड सिक्किम हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन जोन तो जस्ट फॉर एडवेंचर कोट ऑन कोट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेकिंग ओनली तो आफ्टर 2-3 years मुझे लगा ऐसा जो आई एम स्पेंडिंग मनी आई एम स्पेंडिंग माई वेस्टिंग माई टाइम मगर व्हाट अबाउट द हिमालय द माइटी हिमालय तो मुझे लगा जो हम लोग जो जाते हैं we are more into photographs or more into our personal achievement. कोई समिट हो गया तो मेरा पर्सनल अचीवमेंट हो गया फाइन मगर इसमें सोसाइटी का क्या बेनिफिट मिला सो मे बी आई कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट उसमें मेरा सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट हुआ और एक मेरा हैबिट है जो एक ही जगह मैं बार बार जाता हूँ सो दैट आई कैन कंपेयर ठीक है तो मैंने देखा जब 2003 से 2007 एक ही एरिया में जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ स्नोफॉल का डिपोजिशन का डिफरेंस आ रहा है पानी एंड स्पेशली द रिवर्स ग्लेशियर्स टू ट्राई कंटिन्यूअसली तो जितना मैं पढ़ रहा था थ्रू माय कुछ आर्टिकल्स किताब और जो भी है तो मैं देख रहा था आंखों के सामने जो क्या हो रहा है देन आई डिसाइडेड टू चेंज माय फिलोसॉफी टुवर्ड्स अबाउट द मदर नेचर तो मुझे लगा जो मेरा जो जिंदगी है आई शुड स्पेंड नॉट ओनली फॉर माई पर्सनल अचीवमेंट और फॉर माई पर्सनल कंफर्ट बेटर मैं वही काम करना चाहता हूँ जो जिसके लिए मैं एज ए ह्यूमन मुझे बोला जाता है सो आई हैव सम ड्यूटीज एंड आई हैव टू फुलफिल इट तो मैंने शुरू किया अकेला जर्नी मैं बहुत साल अकेला पैदल चला हिमालयन डिफरेंट जोन में मैंने बात किया बहुत रूरल एरियाज का जो बासिंदा है जो ड्वेलर्स है उन लोगों के साथ मुझे अजीब सा लगा दैट वी हैव 1000 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया और अक्रॉस ग्लोब मगर वो जो प्रोजेक्ट है उसमें द कॉमन पीपल आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड तो मुझे लगा जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हम लोग डेटा जो हमारे सामने आते हैं उसमें कुछ फर्क है तो वो मुझे इस पे काम करना है तो मैंने इसलिए डिसाइड किया जो 24/7 अगर इफ आई वांट टू सर्व माय मदर नेचर तो मुझे बाकी सब छोड़ना पड़ेगा आई हैव टू फोकस ऑन माय मोटो तो इसलिए आई डिसाइडेड दैट टाइम आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब क्योंकि अगर कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा हूँ एनीवेयर तो आई एम गेटिंग सैलरी तो ऐसा हो नहीं सकता है जो मैं सैलरी लेके काम करूंगा आधा और नेचर के लिए काम करूंगा आधा ऐसा नहीं होता दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब और मैंने 24/7 मदर नेचर के सर्विस में आ गया तो उसके बाद 2016 में मैं नौकरी छोड़ा एंड स्टार्टेड माय वर्क विद द कॉमन पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेशली द सुंदरबन एरिया तो धीरे धीरे रिवर्स के बारे में पढ़ना जानना ये चल रहा था तो फाइनली मुझे ऐसा लगा जो डेटा और जो जो नॉलेज उसमें थोड़ा फर्क है डेटा तो मेरे मुझे गूगल से मिल जाता है एनी सर्च इंजिन एनी किताब एनी एनी रिसर्च पेपर्स वहां पे बहुत डेटा है मगर व्हाट अबाउट माय फीलिंग व्हाट अबाउट माय मेरा जो दिल से मैं देखना चाहता हूँ वो डेटा में नहीं है तो इसलिए मैंने क्या किया आई डिसाइडेड टू ट्रैवल अलोंग विथ रिवर्स तो एज एन इंडियन जो होता है पहले माँ गंगा आते हैं सामने सो आई डिसाइडेड टू कवर द एंटायर लेंथ ऑफ गंगा मगर नॉट ओनली इंडियन पार्ट स्पेशली द बांग्लादेश द पद्मा एंड मेघना पार्ट
क्योंकि मेरे पास जो जितना पुराना मैप था मैं थोड़ा सा रिसर्च किया है और मैंने देखा जो मेन स्ट्रीम जो जाता है वो बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। और सिंस ये एक इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बातें हम लोग करते हैं, उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज होना ही नहीं चाहिए। सो इट इज अ यूनिफाइड वर्ल्ड की एक ही दुनिया है, और सब वी आर ऑल सिटीजन इन दैट इन दिस यूनिफाइड वर्ल्ड। तो मैंने शुरू किया गंगा एक्सपीडिशन। तो मैंने कहीं पे ट्राई नहीं किया है जो मैं सोशल मैसेज देना चाहता हूँ, जी इसको बचाओ, हाँ नेचर के लिए काम करो, नो। मैंने मेरा मेरा फर्स्ट मोटो था, जो मैं नदी के साथ मैं चलूंगा उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है रूरल इंडिया का, दैट आई वांट टू लर्न। और जो क्राइसिस है मैं वो नोट करना चाहता हूँ। तो क्या होगा जो एक एरिया का बेस्ट प्रैक्टिसेस मे बी इफेक्टिव इन अनदर एरिया, तो मैं ब्रिज का काम करूंगा, नंबर वन। और नंबर टू, जो क्राइसिस मैंने देखा है शायद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल और प्रिंट मीडिया में नहीं आते हैं, तो मुझे लगा जो पॉलिसी मेकर्स और जो ये मीडिया लोग हैं वो दे आर नॉट शोकेसिंग दोस प्रॉब्लम्स, तो बेटर है जो मैं मेरा एज एन इंडिविजुअल और थ्रू मेरा फाउंडेशन मैं कैसे इसको सामने रख सकता हूँ सबके सामने। तो मैं माँ गंगा को देखा और बांग्लादेश के तरफ भी गया मैंने। नदी का हाल इतना खराब था, इतना खराब था, जो ये मेरे लिए नाइटमेयर बन गया। तो इमीडिएटली उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया, जब जैसे खत्म हुआ 3000 किलोमीटर इन 38 डेज, मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया टू कवर द नॉर्थ टू साउथ पार्ट। तो 13 स्टेट्स और 130 रिवर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया जो क्राइसिस में हैं। और साथ में मेरा पास बहुत डेटा भी था, तो मैंने शुरू किया लद्दाख से। तो लद्दाख होके मैं आफ्टर 13 स्टेट्स मैं कन्याकुमारी तक आया, वहां से तिरुवनंतपुरम खत्म किया मैंने। तो इसके दौरान मुझे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफर किया है, जो ठीक है आप तो नदी के लिए काम कर रहे हो, पानी के लिए काम कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मगर साथ में ये करो क्योंकि यू आर साइक्लिस्ट, तो फिटनेस भी जरूरी है। तो यूथ के लिए आप ईट फैट इंडिया मूवमेंट का जो है तो वो थोड़ा आप इसका भी एक बार देख लो। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी अगेन, तो मैंने वो काम किया है। एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ प्रपोजल फ्रॉम सार्क कंट्रीज में जो डायबिटिक लेके काम करता है, क्योंकि जस्ट आई लॉस्ट माय मॉम फ्यू मंथ्स बैक दैट टाइम, और डायबिटीज था मेन कारण। तो उन्होंने बोला देखो आप तो पानी नदी के लिए काम ही करोगे, साथ में ये थोड़ा सा कर दो। तो मैं डायबिटीज कैंपेन किया है, मैं हॉस्पिटल्स में गया, मैं एटलीस्ट ये टोटल एक्सप्रेशन था 70 डेज का, 70 डेज का, तो मैंने एटलीस्ट 50 डेज मैंने स्पेंड किया हॉस्पिटल्स में, केबिन में, वार्ड में, रात में भी। मैंने बात किया है बहुत सारे बांग्लादेश और इंडियन पार्ट पेशेंट के साथ, कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। तो फाइनली 70 डेज के बाद ये पार्ट खत्म हो गया। फिर आया कोविड। कोविड के बाद मैं सोच रहा था चलो इंडियन रिवर्स को थोड़ा बहुत मैंने देख लिया, कुछ सीखा। मगर ऑलवेज हमारा ऐसा है ना, जो जो बाहर का होता है, स्पेशली यूरोपियन पार्ट्स और रशिया ये सब, तो वो लोग रिवर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा कुछ फोकस, जितना प्रॉब्लम मेरे देश में ही है, मेरा कंट्री में ही है। मैंने सोचा नहीं, यूरोप का सबसे बड़ा नदी को मुझे देखना है। देन आई डिसाइडेड टू विजिट रशिया, और मैं वोल्गा को करीब से देखा। तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली सोसाइटी के एंगल से, क्योंकि सिंस आई एम नॉट अ रिसर्चर साइंटिस्ट, तो मैंने इसका सोशल इम्पैक्ट देखा वोल्गा का। तो उसमें भी मैं वही देखा, जो पीपल अराउंड वोल्गा, द कॉमन पीपल अराउंड वोल्गा, दे आर वेरी कॉन्शियस। वो लोग प्लास्टिक रैपर छोड़ते नहीं है, क्लीन बहुत रखते हैं, मगर व्हाट अबाउट द सिचुएशन जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैं वही देखा, जैसे वोल्गोग्राड में इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है वो डायरेक्टली वोल्गा में आ रहा है। तो सिचुएशन सेम था। उसके बाद मैंने गया श्रीलंका, क्योंकि अब सबको पता है जो जस्ट फॉर क्लाइमेट चेंज, कुछ दिन बाद श्रीलंका धीरे धीरे वाटर लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, वो अंदर चला जाएगा। तो जो जो हॉटस्पॉट है श्रीलंका का, आई पॉइंटेड आउट, और उसमें मैं गया एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट अराउंड श्रीलंका मैंने देखा सी शोर पकड़ के, जो सिचुएशन, जो हम लोगों को पास जो डेटा आते हैं उससे भी बहुत भयंकर, बहुत खराब सिचुएशन श्रीलंका का है। फिर मैंने आगे आपका सेंट्रल एशिया पार्ट में, क्योंकि आमू दरिया, शीर दरिया, ये दो नदी का जो हाल है, अरल सी ऑलमोस्ट 60% गायब हो गया।
तो मैंने उज्बेकिस्तान स्टार्ट किया अमुदरिया रिवर बेसिन। और वहाँ पे इतना कॉटन उगाते हैं वो लोग, तो पानी के लिए किल्लत और भी ज्यादा हो जाता है। और मैंने फिर उज्बेकिस्तान में जो जो छोटा छोटा नदियाँ है, जो दो, उज्बेकिस्तान का कोई अपना नदी नहीं है फिर भी, जारफशन, कास्का दरिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ उज्बेकिस्तान, जहाँ पे पूरा सिटीज में पानी जाते हैं, मगर वो पानी भी खत्म होने का कगार में है। तो फिर मैंने वहां से थाईलैंड में गया। थाईलैंड में चाव फ्राया जो नदी है, सबसे बड़ा नदी है चाव फ्राया, तो वहां से मैंने चियांग माई से स्टार्ट किया और आपका खत्म किया ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में। उसके बाद मेरा जाना वाला था कंबोडिया एंड वियतनाम मेकोंग रिवर के लिए, मगर मेरा घर में एक हादसा हो गया, सो आई हैव टू पोस्टपोन माय जर्नी। आई केम बैक ऑन 4th January दिस ईयर, मुझे वापस आना पड़ा। तो नाउ आई एम प्लानिंग फॉर माय नेक्स्ट एक्सपीडिशन 5000 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द काहो, द डोंग वैली ऑफ अरुणाचल। और मेरा खत्म होगा ये एक्सपीडिशन सनसेट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द गुहरमती इन गुजरात। तो ये मैं अक्टूबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। विल टेक अराउंड 107 डेज। इसमें मैं कवर करूंगा 72 रिवर्स को। और ये जो मैंने आपको बताया जो मेरे एक्सपीडिशंस का, इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड द स्कूल्स मेनली, वहां पे मेरा बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हो रहा है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट एनजीओज आते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज आते हैं, ट्रस्ट आते हैं, ये हम लोग को क्या होता है, एक कनेक्शन बन जाता है। फिर रेस्ट ऑफ द ईयर हम लोग एक साथ काम करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस का मैं बात कर रहा था। और मैं जहाँ पे रहता हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता में, कोलकाता अभी बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है, क्योंकि एक हीट आइलैंड इफेक्ट है हमारे शहर में। इस बार तो 45 डिग्री 44 डिग्री प्लस नॉर्मल हीट वेव चल रहा था कोलकाता में। मगर सबसे बड़ा खतरा जो है फॉर कोलकाता, दैट इज सुंदरबन, क्योंकि लास्ट 10-15 ईयर्स में हम लोग बहुत सारे साइक्लोन झेले हैं अभी तक। इवन रिसेंट पास में रेमेल आया था, इतना इफेक्ट हुआ नहीं, थैंक गॉड, मगर बांग्लादेश में काफी हुआ है। और इससे पहले जो आम्फान हुआ था उसमें हमारा मैंग्रोव एरिया ऑलमोस्ट 2/3 खत्म हो चुका है। तो मुझे फिर ये जो 2016 से 2024 तक 8 साल का जो सफर मेरा चल रहा है आफ्टर लिविंग माय कॉर्पोरेट लाइफ, मैंने देखा जो क्या होता है, कोई सेमिनार बनता है, कोई सेमिनार होता है, कोई सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होता है, 1 घंटा 2 घंटा इंसान सुनते हैं, मगर उसके बाद धीरे 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 वो डाउन हो जाता है एनर्जी, और भूल जाते हैं जो हम क्या बोले। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रोजेक्ट जहां पे स्कूल स्टूडेंट्स मेनली कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहेगा। और उसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किया वाटर लिटरेसी प्रोग्राम इन द नेम ऑफ इको चैम्प। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, ये फिलैंथ्रोपी के थ्रू से कर रहा हूँ। इको सेवा फाउंडेशन इज अ सेक्शन 8 कंपनी एंड फिलैंथ्रोपी इज अ एनजीओ बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल। तो मैं जो अभी वाटर लिटरेसी प्रोग्राम कर रहा हूँ थ्रू फिलैंथ्रोपी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लास 6, 7, 8 ये जो क्लासेस है, इस पे 20 स्टूडेंट्स को हम लोग एवरी क्लास हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। और फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर द एंटायर ईयर ये लोग क्लास करते हैं एवरी सैटरडे 2 आवर्स। और इसके लिए मुझे चाहिए था बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो टीचर होके क्लास करा सकते हैं। तो हम लोग क्या किया है, सपोर्ट सेटअप किया है, जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग से सेटअप बनाया। और वही टीचर्स जाके क्लास लेते हैं, वाटर लिटरेसी का क्लास लेते हैं स्कूल्स में जाके। और ये जो स्कूल्स में जा रहे हैं वो लोग क्या सीख रहे हैं, बेसिकली व्हाट इज वाटर, ग्राउंड वाटर किसको बोलता है, नॉट ओनली दिस थिंग्स हम लोग सिखाते हैं। जो देखो, जो आसमान आप देख रहे हो, जो क्लाउड देख रहे हो, ठीक है, क्लाउड डिफरेंस कैसे आप कर सकते हो डेली लाइफ में। आप कैसे आसमान को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कल बारिश होगा कि नहीं होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा है हमारे सिटीज में, इवन रूरल एरियाज में, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना खराब है। तो आप और आपका फैमिली में इसका असर क्या है। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर टीचिंग देम व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेनली हम लोग जो कर रहे हैं सर वाटर लिटरेसी मूवमेंट के थ्रू, वो है एवरी पर्सन का, हर आदमी का बिहेवियरल चेंज, छोटा छोटा बिहेवियरल चेंज। क्योंकि गूगल में अगर कोई सर्च करता है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स तो दिखाते हैं जो बेसिन का टैप बंद कर दो, मगर इंडिया रूरल रूरल इंडिया में
बेसिन कहाँ मिलेगा, वॉश बेसिन, और ओवरहेड टैंक कहाँ मिलेगा। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक किसान है, जो किसान पिछले 30 साल से काम कर रहा है, उसको ना पता है जो कैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको हर चीज मत पता है। मगर जो नहीं है वो है अवेयरनेस। कैसे शैलो चलता है, शैलो फार्म। तो वो अगर पानी लेता है ग्राउंड वाटर का, 5 मिनट का पानी ऑन करके रखते हैं, तो उसका काम बन जाता है। मगर मैंने खुद देखा इतना साल कंटिन्यूअसली एक एक जगह वही पानी 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ के रखा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो उसका कोई मायने नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे एग्रीकल्चर कम पानी में हो सकता है, वहां पे मैं देख रहा हूँ मैंग्रोव खत्म करके फिशरीज हो रहा है। तो ये सब जो जगह जो एग्रीकल्चर में है, उन लोगों को पता है जो सॉइल का सिचुएशन अच्छा नहीं है, क्वालिटी खराब हो रहा है धीरे धीरे। मगर जो आपका थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न चेंज का अगर कर सकते हैं, तो यू कैन सेव वाटर। इसके लिए आपको साइकिल चलाना जरूरी नहीं है, 1000 किलोमीटर पैदल चलना जरूरी है। दीज आर ऑल गिमिक्स, अगर वो काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा सा वो स्लाइड दिखाना चाहता हूँ सर। सो दीज आर द फ्यू फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग माय एक्सपीडिशंस इन लद्दाख। ये बांग्लादेश का था, सार्क कंट्रीज। ये रशिया यूनिवर्सिटी है। ये श्रीलंका है। दिस आर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। ये नीचे वाला जो फोटोग्राफ्स है, ये है आपका उज्बेकिस्तान में, ताशकंद, जहां से मैं शुरू किया था। ये त्रिपुरा का है, लॉन्ग तराई एरिया। द ट्राइब रहता है। इन लोगों का पानी का किल्लत भयंकर है। 15 दिन और एक हफ्ता नहीं तो कभी कभी 15 दिन में एक ही बार कोई वाटर टैंकर आता है अगरतला से, भर के चला जाते हैं। बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब रास्ता बहुत ही खराब हो जाता है, जब पानी नहीं पहुंच पाता है फ्रॉम अगरतला, इन लोगों को वही सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा टैंक से इन लोगों को कभी कभी 15-20 दिन, 1 महीना तक काम चलाना पड़ता है। ये मेरा शिलोंग में है, ड्यूरिंग माई थर्ड एक्सपीडिशन। डीदेन गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर सर मुझे फेलिसिटेट किया था। और नीचे जो फोटोग्राफ्स है, ये केंद्रीय विद्यालय शिलोंग, इंडियन एयरफोर्स का, वहां पे मुझे बोलने का मौका मिला था। ये सुंदरबन एरिया है। आफ्टर आम्फान हम लोग रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज किया। और जो क्या एनीवेयर रिवर आइलैंड में जब रिलीफ आते हैं, तब क्या होता है सर, बहुत सारे प्लास्टिक्स आ जाते हैं साथ में। मगर वो प्लास्टिक तो बाहर जा नहीं पाता है ना, तो तब फोकस रहता है जो कैसे मैं सपोर्ट करूं पानी और खाना। मगर दोज प्लास्टिक्स वो जाएगा फाइनली डिपार्टमेंट में, या फाइनली जाएगा ओशन में। तो इसलिए हम लोग क्या किया था उसमें, जो जितना पुराना प्लास्टिक बॉटल्स है आपके पास और प्लास्टिक्स है, वो लेके आओ। एफसी केन प्लास्टिक बॉटल्स के लिए आपको हम लोग प्लास्टिक बोतलें देंगे, मगर यू कैन री यूज। आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स, इफ यू कैन अगेन, इफ यू वांट टू, आप अगर वापस करना चाहते हो, देन विल गिव यू अनदर स्टील बॉटल्स। तो सर ये प्रोग्राम एक हफ्ता हम लोग चलाया था, जस्ट आफ्टर द स्टॉर्म। और इसमें इतना सक्सेसफुल हुआ था हम लोग सर, कितना टन हम लोगों को प्लास्टिक्स मिला था। और सिर्फ अच्छे प्लास्टिक बोतल के लिए, जो 20 साल पुराना जो खेती जो मिट्टी के अंदर था, वो भी खोद के ले आया। और ये सारे हम लोग भेजा है मेन आइलैंड में, कोलकाता में। और वहां से हमारा दूसरा एक एनजीओ था जो ये प्लास्टिक्स को कलेक्ट करके रीयूज करने के लिए वो लेके गया था। ये ड्यूरिंग कोविड टाइम। और कोविड टाइम जहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट दे रहा था, जब कोविड खत्म हो गया, स्कूल्स में प्रोग्राम किया। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, दे आर ऑल दैट टाइम सो एनर्जेटिक। हम लोगों को बोला था सर, हम लोग कोविड के टाइम जितना सपोर्ट किया आप लोग मेन आइलैंड से आके, तो वी वांट टू कंट्रीब्यूट। तो आज ये जो बच्चे लोग आप देख रहे हैं, दे हैव देयर ओन यूनिट्स, और ये काम कर रहा है फॉर मैनग्रोव। सर दूसरा एक पहलू है, एवरी ईयर जो नेचर एंड एडवेंचर स्टडीज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम दो तरीका से करते हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शहर का बच्चे स्पेशली। मगर मैं फोटोग्राफ्स नहीं दिखा सकता हूँ, मगर मैं बोल सकता हूँ, वो है जो दोज वर ट्रैफिक, जो हमारा घर का बेटी ट्रैफिकिंग हो जाते हैं, बेच देते हैं आपका प्रोस्टिट्यूशन के लिए। उन लोगों को हम लोग क्या किया है, हर साल मैं अभी रॉक क्लाइंबिंग में भेज रहा हूँ, रॉक क्लाइंबिंग एंड एडवेंचर स्टडीज। क्योंकि वो लोग, नंबर वन, द रिहेबिलिटेशन हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, अगर ये जिंदगी में आ गया, तो उनको बहुत सारे नया ओपनिंग्स मिल सकता है, इवन द टूरिज्म सेक्टर में है, और सेफ्टी, कॉर्पोरेट सेफ्टी में। तो हम लोग इसमें सीपीआर से लेके रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक
एंड कैंपिंग कैसे करते हैं, मदर नेचर को तुम कैसे साफ कर सकते हो। तो 5 दिन का कोर्स हम लोग करते हैं। साथ में ये ट्रैफिक जितना बेटिया है हमारा सबके लिए सेव वाटर डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हम लोग कम कर रहे हैं सर। ये जो है प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये है जो बच्चे जिसका पेरेंट आइदर नहीं है, नहीं तो वे लोग रेल स्टेशन और रेल ट्रैक के आसपास ये लोग गांजा पीते हैं, डेंड्राइट लेते हैं, एडिक्टेड है। इन लोगों को हम लोग एक एक एरिया से 40 to 50 विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, तो हम लोग इन लोगों को नया लाइफ दे रहे हैं। मगर शर्त यही है जो पढ़ाई करो साथ में नेचर स्टडीज भी करना है। तो अभी फिलहाल वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर श्रीमती काकुली घोष कुंडू, शी इज द आईसी ऑफ हावड़ा पुलिस स्टेशन वुमेन पीएस। हम लोग शुरू किया है बारांदाए रुद्दुर बोल के एक प्रोग्राम्स, जहाँ पे हावड़ा जिला में जितना एडिक्टेड बच्चे हैं वो लोग भी अभी क्लास कर रहे हैं सर। ये हमारे इको चैम्प का फोटोग्राफ्स है जो अब मैं बोल रहा था, जो फॉर 1 year 3 months 6 months एंड 1 year का कोर्स चल रहा है स्कूल्स में। दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, मगर थैंक्स टू हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस जो अलाउ किया है हम लोगों को। एवरी सैटरडे क्लास होता है फ्रॉम 11 to 1, 1-2 घंटे के लिए। तो मेनली ये देखिए उसका फोटोग्राफ्स सर। ये फोटोग्राफ्स फिलहाल के लिए मेरा यही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लास्ट जो रेमेल आया था हमारा साइक्लोन, उसमें हम लोग क्या किया था, जब रेमेल आ रहा था हर कोई वहां से भाग रहा था एक्चुअली। तो मेरा टीम और हम लोग सब गया वही एपिसेंटर में सुंदरबन में। जब रेमेल फाइनली हिट किया है, हम लोग, हमारा जो टीम्स है वो टीम को मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था। और हम लोग क्या किया, जो मिट्टी का बांध है, डैम है, थोड़ा करके वो हम लोग बचाया। तो एक छोटा सा क्लिप आपके पास है और थोड़ा सा प्ले Sure, कीजिए। sure, sure. Srinath, can you please share? Yes. Volume. सर ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअली डैन पे रखा था 20 minutes आई हैव, क्योंकि मेरे पास तो बहुत क्लिप्स है। और थैंक्स जो हमारा रीजनल मीडिया वो एक्सटेंसिवली कवर किया है हम लोगों का काम। और मुझे लगता है सर, हम लोग जितना भी बोले, जितना भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यूटिलाइज कर ले, वो होना भी चाहिए। और भी टेक्निकल अप्रोच हमारा क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए होना चाहिए। मगर स्टिल वो काम करना पड़ेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ और ह्यूमन इमोशंस के साथ। तो मैं 8 साल में ग्राउंड में काम करके जो मुझे खुशियां मिलते हैं, जो आनंद मिलता है, आई एम वेरी मच होपफुल। बहुत जल्दी हमारा हर चीज जो हम लोग नेगेटिव से देख रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है। और हम लोग तो टॉर्च बियरर है, नेक्स्ट जनरेशन वाटर लिटरेसी मूवमेंट सर। एक दिन देखेंगे हमारा देश भारत लीड करेगा दुनिया को। और एक चीज है जो, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, अबाउट द रिवर्स, अबाउट द फॉरेस्ट, इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्री होना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आई एम, पहले फर्स्ट आई एम एन इंडियन, प्राउड इंडियन। मगर साथ में भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो इस यूनिफाइड वर्ल्ड, ये इंडियन वार्मिंग नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो अगर श्रीलंका ठीक से नहीं रहेगा, मेरा साउदर्न पार्ट नहीं अच्छे से रह सकते हैं। अगर म्यांमार बांग्लादेश ठीक से नहीं है, तो हम लोग भी पीसफुल नाइट नहीं मिल सकता है। चाइना अगर बहुत सारे डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं माइनिंग के लिए, तो लद्दाख अच्छा रहेगा, अरुणाचल अच्छा रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक अच्छा अप्रोच है वही है, नाउ पीपल आर यूनिफाइड, एक साथ काम करके इसको बंद करना है। और आई एम वेरी मच श्योर जे और भी कॉमन पीपल हमारे साथ आएगा, और भी एनजीओज और सेंसिटिव पीपल इसमें आएगा सर। थैंक यू। Thank you very much, sir. This is a very interesting journey that you have taken us through. Not that every day we discuss these things, unfortunately.
वी शुड एक्चुअली फोकस अ लॉट, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और लोगों में अवेयरनेस अगर क्रिएट करना है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बात करना पड़ेगा और करते रहना चाहिए। सर। हम आप या बोलिए सर, बोलिए। ना नहीं सर, आप जो बोले वही कंटिन्यूस हैमरिंग। क्योंकि इसमें एक है सर, मैं जस्ट आई वांट टू ऐड 1 मिनट। वो है, देखिए सर, किसी किसी ने ब्लड डोनेट किया किसी के लिए, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट के लिए मैंने ब्लड डोनेट किया, वो बच गया, दैट्स इमीडिएट रिटर्न, आराम मिला है ना, जो बच गया मेरा ब्लड से, ब्लड देने से, ब्लड डोनेट करने से। मगर जब हम लोग नेचर के लिए काम करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी है नहीं, कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा। मे बी इट विल टेक अनदर 100 years। तो आदमी परेशान हो जाता है, जब हम कर रहे हैं मगर कुछ हो ही नहीं रहा है। जब भी हम लोग न्यूज़पेपर और मीडिया में जाते हैं, देखते हो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये इंडेक्स खराब हो गया। सर, बात है इसमें कोई इमीडिएट रिटर्न है ही नहीं। इसमें जैसे एक ही दिन में पॉल्यूशन आया नहीं, तो एक ही दिन में जाएगा भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट, हमारा 800 करोड़ का दुनिया है, धीरे धीरे होगा, मगर होगा तो जरूर सर। यू आर राइट, इसलिए हैमरिंग कंटिन्यूअसली एक ही बात हर दिन हर लम्हा हम लोग को बोलना चाहिए, 24/7 सर। Wonderful, wonderful. So, Mr. Samrat Malik is an epitome of expedition. He started single. He started with understanding what he is and related himself to the Mother Nature. And he said that the duties as a human are more to Mother Nature than personal comfort or aggrandizement or achievements that one does through their treks or cyclings or expeditions. उससे क्या बेनिफिट है सोसाइटी के लिए? आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट ही हैज आस्क्ड. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट which has been very very impressive. Second, I think information is possible, is available to everyone. It is available on Google, but to get feelings, to get details of human beings and understand their emotions, I think you need to connect to them. And he has devised a formula of traveling through various towns and cities and understand those emotions and feelings of the people by establishing that connect. Now, once there is connect and once there is an understanding of the feelings, I think the focus and our dedication will become much stronger on the chosen cause that one is espousing. It's a beautiful pathway into how he has actually landed on the, how he has hit the roads by hitting on some of the most important concepts, some of the most important issues that we are facing today. Sir, entire journey that you have explained through some pictures and through that video is about learning best practices in one place and trying to see if that can be replicated or used Yes, elsewhere. I think yes, this is a beautiful connect. And most of the times, these facts related with emotions and feelings and the real stories are not reported in the mainstream media, and yes. therefore you become the person who has brought this information and feelings and the stories to the world. I think that's a very very important journey that you have embarked on. We are extremely happy that you have agreed to speak in our conversation. So, in this 157th leadership conversation, we are fortunate that for this session, we are joined by some extremely good people, people from senior people from academics, people from concerns of environment, champions of ESG, sustainability, chartered accountants, and some very interesting people from FMCG background. Students also have joined. I welcome all of them to this conversation, and we will have now the Q&A. The Q&A will go into two clusters. The first cluster will be taken up by Professor Prasad. I will come back for the second cluster, and during the second cluster, you can raise your hand. We will probably open the mic for you depending on your question so that you can directly talk to the leader, Mr. Samrat Maulik. So thank you, sir. I now welcome Professor Yes, sir. Prasad to start his Q&A. Thank you. Thank you, Professor Rao. Thank you, sir, for a very inspiring depiction of how you made a transition from what most of us do to what you have been doing in a fairly unique fashion. I'm sure a lot of listeners have their heart in the right place, though perhaps at this moment in time, they may not be spending as much time as you. And so, to begin the question session, I'd like to know how you got influenced. I mean, you have referred to certain people who have influenced you in the original, introduction. So, how did this become so important to you? Who are the So, people? सर, बिफोर मेंशनिंग एनी पीपल और एनी नेम, जब मैं छोटा था, क्लास 2 में पढ़ते थे, तो माय फादर
gifted me a book. It is called Nadi Katha, a tale about rivers. Is published by National Book Trust, +2 में. तो मैंने देखा वाराणसी, मैंने देखा फोटोग्राफ्स में हरिद्वार, माँ गंगा, द कावेरी, द सेकेंड रिवर, द कावेरी, कृष्णा, गोदावरी. तो +2 में जब मैं पढ़ता था एट द एज ऑफ 8, मेरा जहन में आ गया था ये नदी को. और उसके बाद जब मैं पहाड़ में जाना शुरू किया है, फॉरेस्ट एरिया में मैं घूमता रहा अकेला, तब मुझे पता नहीं कैसे सुकून मिलता था. और फिर मैंने देखा जो ऐसा कुछ नदियां हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारा वेस्टर्न घाट में बाओ बोल के एक नदी है, बाओ नदी. वो बहुत बिल्कुल साफ सुथरा नदी है, मगर जब मुंबई के पास आ जाता है वही नदी खराब हो जाता है. तो गंगा के लिए मैं वही देखा एज अ बंगाल रेसिडेंट. मैंने देखा जो गंगा जहां जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है वो कितना सुंदर है, लाइक राजमहल में. मगर वही गंगा जब इधर आ जाता है तो कितना गंदा हो जाता है. तो इन्फ्लुएंस जो मैंने मुझे मिला है, एक देवाशीष गोवर्धन बोल के मेरा एक मेंटर है जो बहुत पढ़ाई करते हैं, और ही नोज अबाउट लॉ, ही नोज अबाउट रिवर्स, द नेचर. तो उन्होंने मुझे साल भर ये बोलता था, देखो ये रिवर्स का है, ये ओरिजिन किया है, इसका हिस्ट्री यही है. तो अभी आप 2008 में हो, 2009 में हो, 2010 में हो, इसका हिस्ट्री हर कोई भूल रहा है. शायद ये सिटी नहीं रहेगा तो ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और दूसरा हिस्ट्री हम लोग बनाएंगे, ये रेगिस्तान हो जाएगा. व्हाट अबाउट द राजस्थान. फाइनली एक दिन देवाशीष दा ने मुझे बताया द ओल्ड सरस्वती रिवर, जो जिसके दो महेंद्रगढ़. हाँ, तो मैंने स्टडी किया, तो मैंने देखा जो एक नदी सूख गया फॉर एनी रीजन, द नेचुरल रीजन भी हो सकता है, वॉट एवर, तो नहीं है. तो मुझे ना बहुत डर लगा. मुझे लगा जो मेरा प्यारा गंगा है, जो 55 करोड़ इंडियंस है डिपेंडेंट ऑन दैट पार्टिकुलर रिवर, ठीक है, ये सूख जाएगा. तो मैंने जब गया पहला बार गोमुख होके कीर्ति ग्लेशियर की तरफ जा रहा था, मुझे लगा, मैं सुन रहा था वहां का साइंटिस्ट बोल रहा था आफ्टर ऐसे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा तो अगर 2 डिग्री भी हो जाएगा तो हमारा जो गंगा का मेन कोर्स है वो बदल जाएगा, वो इंटरली गंगा रिवर कोर्स चेंज हो जाएगा, स्नाउट पॉइंट इन ही रहेगा. तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसा इंसान है जो मुझे इन्फ्लुएंस किया है, और मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया. जब मेरा मेरा एक बेटी है, क्लास 8 में पढ़ती है अभी केंद्रीय विद्यालय में. तो वो जब पहला बार जब जन्म लिया, मुझे लगा था, फर्स्ट मैं उनको जब देखा मुझे लगा जो अगर ये मेरा बच्चे है तो हजारों लाखों करोड़ बच्चे मेरा है. अगर मैं मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा कुछ देना चाहता हूँ, व्हाट, द प्योर एयर, द प्योर वाटर, ए ग्रीनरी, तो आज मेरा बेटे को मिलेगा तो इथियोपिया का भी कोई बच्चे को मिलेगा, यूएस का भी बच्चे को मिलेगा, बोलिविया का बच्चा मिलेगा, क्योंकि मैं एक बेटी का पिता नहीं हूं, मैं सबका हूं. तो इन्फ्लुएंस जैसे मिला है सर, एक नहीं बहुत सारे जगह से. और मेरा एक पॉजिटिव साइड था, वो है मुझे इतना साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और बहुत नॉलेजेबल था नहीं मैंने, तो मैं था ओपन बुक अभी तक. तो मैं जो काम शुरू किया है अभी तक कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा एज अ लर्नर. मैं हर चीज सुनता हूँ, सीखता हूँ, और जाके वो बच्चे को मैं बोलता हूँ, देखो आज ना मैंने सीखा, आप लोग भी सीख सकते हो. तो इन्फ्लुएंस ऐसे हुआ है सर, मतलब एज अ लर्नर आई एम ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीबॉडी. एक किसान भी हो सकता है, आज आप भी हो सकते हैं. Excellent, excellent. I think you have been a magnet. I think the first magnetization you mentioned was the book that your father presented to you, and that magnet is of a special type. And then I think as you go along, you have attracted the right sort of people who have influenced you, and in turn, you are also doing the same. And I think that's a very unique journey, and it tells us that if we do choose a passion where we want to spend our time, and if we are serious about it, this power of magnetism will come along with it. This is what I've understood from what you said. Sir, yes, It's sir. very much possible. Sir. Yeah. Next question is connected. You have mentioned that you have, from starting from the book, the various rivers. Now, every river has its own identity. It seems to have its own identity. And those who have gone to that river, those who stay near the river, there is an ecosystem around it. So for them, the river means more than water. I mean, for those who stay in cities, rivers are the water that they get to drink, and rivers are also perhaps the damage that they can cause.
But Yes. for those who understand rivers, it is far more. There is an ecosystem around it. Now, how do you share your experience about differences between, say, any two rivers you can choose, so that we get that sense of feeling that this river is far more than just the water it carries? Acha. I'll mention a small river in Purulia in West Bengal, the west part of West Bengal. There's Totco River. Totco River carries gold. Okay. पर बहुत कम सुना जाता है इस रिवर के बारे में। ऑरिजिनेटिंग पॉइंट इज इन झारखंड और खत्म हो जाता है वेस्ट बंगाल, कासाई बोल के, कौंगशाबती बोल के एक नदी है इसमें। तो कुछ दिन पहले मैंने गया था, तो ऐसा प्योर वाटर, तो वहां पे ट्राइब्स लोग होते हैं, तो मैंने उसको पूछा जो आप लोग ये नदी को गंदा क्यों नहीं किया, तो वो लोग मुझे आंसर जो दिया है वो देखो इसमें सोना है। ओ अच्छा, दैट मीन्स फॉर बिजनेस पर्पस, अगर नदी खराब हो गया तो सोना नहीं मिलेगा। बोले नहीं, वैसा नहीं है। जो नदी में सोना मिलता है ना, तो हम लोग चारों तरफ जो रहते हैं, हमसे बड़े लोग और कौन है, तो दिस माई इमोशन। तो हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो नदी में कुछ हानि पहुंचे। तो उसमें क्या होता है, हेवी इंडस्ट्री है नहीं, ठीक है, उस पे ट्राइबल लोग है। ट्राइबल लोग का घर इतना क्लीन होता है, इतना हाइजीनिक होता है, अगर मिट्टी के ऊपर भी चावल दे दे हम खा सकते हैं। अभी ये लोग जनरेशन बाय जनरेशन हाइजीन को मेंटेन करके आ रहे हैं। ये अगर कोई पेड़ भी काटते हैं तो 3 पेड़ लगाते भी है। तो एक रिवर का जो इकोसिस्टम है, जो नेटिव प्लांट्स थ्रू आउट द कोर्स होना चाहिए, वो किया है। उसमें वाटर स्टेट मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। वो लोग यूज करते हैं कोई कंज्यूमेबल थिंग्स जो होता है एफएमसीजी का, वो नहीं। सुबह वो नीम का पेड़ से ब्रश करते हैं, ठीक है सर, वो वही पानी यूज कर रहे हैं खाने के लिए, खेती के लिए। तो ये अपना जिम्मेदारी है। जो टॉटको जो रिवर का बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा रिवर है, मगर उसको प्रिजर्व करके रखे हैं। ये टॉटको के साथ और भी एक नदी आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं जाम नदी। लोकल लोग बोलते हैं जमुना, नहीं तो जाम। वो भी फॉरेस्ट से निकल के आते हैं, उसको भी वो लोग मेंटेन किया है, क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन करने नहीं दिया है, ठीक है। और फाइनली ये कांसाई में आके, कौशलवती में आके मिल जाता है। तो ये बहुत स्मॉल, एक छोटा सा नदी है, मगर मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल्स है। जो हम लोग बोलते हैं पुरुलिया पढ़ाई में बहुत पीछे है, साइंस उन लोगों को पता नहीं है, मगर सर इकोसिस्टम का जो बात आप मेंशन किए हैं, उन लोगों को भर भर के पता है, जनरेशन बाय जनरेशन पता है, जो हाउ टू मेंटेन इकोसिस्टम, हाउ टू सर्वाइव अलोंग विथ रिवर। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 मैं बात करूं सर आपका, जब मैं लद्दाख से कन्याकुमारी आ रहा था, तो एक जगह गुजरात वापी में, वापी से आगे प्रोबली वोंकलेश्वर की जगह है, तो मैंने रुक गया खाने के लिए। तो एक जैन होटल था, तो मैं खाना खा रहा था, बहुत भूख लगा है, रास्ता का काम चल रहा था। तो एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया, इतना लंबा दाढ़ी है, हेलमेट है, पास में। बोले कहाँ से आ रहे हो? ऑल लद्दाख से। कहाँ जाओगे? हम लोग कन्याकुमारी। अरे भाई क्यों जाओगे? मैंने बोला ऐसा ऐसा कारण है। तो बोलता है भाई, मेरा हाथ पकड़ लिया, बोलता है भाई एक काम करो। हम क्या? आज लोकल मीडिया को थोड़ा बोलोगे? हम क्या? बोलते हैं केमिकल फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए वी शुड हैव सम नॉर्म्स, और वो नॉर्म है भी, मगर कोई मेंटेन नहीं करते हैं। हर जगह हमारे केमिकल फैक्ट्रीज है। तो मुझे वो लेके गया ऐसा खेती में जहां पे पानी जमा हुआ है, उसका पानी का कलर भी चेंज हो गया। बोलते मेरे घर में 2 महीने का बच्चे हैं, वही सांस ले रहा है, वही चावल खा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस, तो आप कुछ करो मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते चलते सर ऐसा हजारों मुझे मिला। और नदी का जब मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं गंगा का बात कर रहा हूँ। आप पाटना गंगा, वाराणसी गंगा सबको पता है, ठीक है ना। कनौज का गंगा के बारे में हम लोग बहुत कम बोलते हैं। कनौज का गंगा इतना घटिया हो गया, इतना पानी गंदा हो गया, तो बीच बीच में खबर आते हैं जो हर मछली मर गया। मगर वहां पे जो रहते हैं कॉलेज में, उन लोगों का फिक्र बहुत कम लोगों को मैंने देखा। ज्यादातर दे आर फेमस फॉर इत्तर, तो इत्तर बिजनेस में है, उसमें जो हमारा हिस्टोरिकल साइट है उसके लिए वो लोग बेसिक ज्यादा कंसर्न है। मगर व्हाट अबाउट द गंगा, दोस पीपल हैव द बेसिक एमिनिटीज, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, हिस्ट्री है, रोड्स है, हर चीज है। पुरुलिया जैसा पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं रहते उधर, मगर स्टिल दे आर नॉट कंसर्न। बहुत कम आदमी को मैंने देखा जो गंगा के बारे में सोचा है। और दूसरा चीज है सर, देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ
जो गंगा के मैं चारों तरफ देखा, जो पेस्टिसाइड आके मिल रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल जो effluent जो मिल रहे हैं नदी के साथ, उसके लिए जो एसटीपी होना चाहिए, ये एसटीपी है ही नहीं, वो काम तो नहीं करता है। ये लोग जो हैं वो डिमांड भी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी इतना बड़ा नदी है जहाँ पे इतना सारे बिग सिटीज है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी का सिटीज है, वो लोग कभी डिमांड नहीं करते हैं जो मुझे एक क्लीन रिवर चाहिए, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है जो उन लोग को राइट्स क्या है, नंबर वन। नंबर टू, दे आर मोर इनटू जो आप बोल सकते हैं इनटू कंज्यूमरिज्म। ठीक है, उनको उनका सक्सेस है क्या, कितना घर, कितना गाड़ी, कितना बैंक बैलेंस हुआ है, मेरा शॉपिंग मॉल हुआ कि नहीं, तो डेवलपमेंट हुआ है। मगर मैं जब टॉटको के बारे में बोल रहा हूँ, दे डोंट नीड एनी शॉपिंग मॉल, कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, चाहिए एक यूनिवर्सिटीज, बड़ा यूनिवर्सिटी, मगर दूर में, नदी से दूर। और ये लोग, जो मैं शहर का बात कर रहा हूँ, दे आर लिस्ट कंसर्न अबाउट द रिवर। तो मैं मुझे लगा, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो रूरल एरिया में जाके काम करो, मगर अवेयरनेस बिल्ट अप करना है तो शहर और टाउन में ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इज, मैं एक जगह, एक ब्रिज था नदी का, और दूसरा नदी था, ये मुझे नाम याद नहीं है अभी तक। तो अभी थोड़ा सा अपहिल, नॉट अपहिल, थोड़ा सा बीच के ऊपर चलने से तो थोड़ा सा टायर्डनेस आता है, तो मैं रुक गया ऊपर आके। तो मैंने देखा एक सफेद एक गाड़ी आया, 4 व्हीलर, वहां से सफेद ड्रेस पहन के एक आदमी ने प्लास्टिक्स और कुछ फूल फ्लावर्स फेंक दिया नदी में, नदी जा रहा है। मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लिया, उल्टा तरफ वहां का एक देहाती, एक आदमी बैठे, बूढ़ा। तो बूढ़ा के जाके बोला, अरे यार, नदी का पानी खराब कर रहा है, प्लास्टिक फैल रहा है, हाँ, मैल कर रहे हैं, इसको आप कुछ नहीं बोलते हैं क्यों? बोले, कहाँ फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा? मतलब वो एरिया में वो एक्सपेंड किया है उनका अपने भाषा से, अब प्रॉपर सैनिटेशन का बंदोबस्त है ही नहीं। अगर उसको ये गार्बेज क्लीन करना है तो नदी में ही फेंकना है, तो इसीलिए इट बिकेम देयर हैबिट। तो हमारा देश में तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं जहाँ पे हम इसको वेस्टेज को हम लोग ठीक से प्रॉपर तरीके से मैं रिसाइकल कर सकता हूँ। तो सर, हर जगह हमारा हैबिट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नहीं। तो दो नदी का मैंने देखा फर्क, आप जो बोला है, तो ऐसा ऐसा मैं बयान कर सकता हूँ। थैंक यू सर। Thank you. I think your experiences have given us good visual appeal of one on one side, a good practice, the river in Bengal. I'm unable to pronounce it correctly. टॉटको, Totko. TOTTOTKO। Totko. Okay. यस, टॉटको। And on the other side, you have given us the example of Kanauj, where the ecosystem is terrible. टेरिबल। Now I'll take it to the next question. You have mentioned about good practices. Now, if you need to look at places like Kanauj, and there are many across in India, have you found any good practices in such places that somebody or the other is doing? हाँ सर, बहुत सर। Can you give us an idea? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। लाइक इन गुजरात और राजस्थान, मैंने देखा जो वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए वो लोग खुद पिट बना के रखा है और वाटर हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो मैंने पूछा इसको, एक दुकान था एक्चुअली, तो मैंने पूछा जो ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? धर्म बोलता है, हाँ? बोलता नहीं नहीं, धर्म हम लोग बनाया। हम कहाँ से सीखे? बोले, सीखने का बात है नहीं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना ही नहीं वो लोग कभी। तो बोलता है ये तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। बोला, अच्छा ऐसा? बोला हाँ। बोला, हम अकेले नहीं, आप आ जाओ। तो मुझे बहुत सारे जगह दिखाया, देखो हम लोग बना के रखा है पीक, क्योंकि पानी का किल्लत जब होगा गर्मी के टाइम, और इसको इवेपोरेट होने मत दो, तो ढक्कन भी है इसलिए, नंबर वन। नंबर टू, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं पहुंचा है धौलपुर राजस्थान में, तो मुझे जाना है ग्वालियर। तो हर कोई बंदा मुझे बोला था जो ये ग्वालियर धौलपुर राजस्थान से ग्वालियर मध्य प्रदेश का जो 65 किलोमीटर है, ये डेंजरस है, इसमें बहुत डेकेविटी होता है, लूट लेगा तुमको, बहुत सारे कुछ बोला था। इवन लोकल लोग भी मुझे ऐसा बोल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया है कि चलो आज मैं रिस्क ले ही लेता हूँ। तो मेरा एक्शन कैमरा मैं लगाया सामने, मेरा और दूसरा पॉइंट एंड शूट कैमरा वो मैं इधर लगाया, डिस्प्ले किया है। तो जो जो चीज लूटने के लिए होता है मैं सब सब डिस्प्ले किया है। आई स्टार्टेड बाय जर्नी, देखता हूँ आज कौन मुझे लूटता है। तो फाइनली मैं 65 किलोमीटर जो रास्ते में जा रहा था, तो चंबल का बेहद आया, बाएं तरफ चंबल नदी भी आया। करते करते एक गांव में एक छोटा सा ढाबा था, तो उनके पास मैं रुक गया खाने के लिए। मगर खाना इंपॉर्टेंट नहीं, बात करना जरूरी था। तो मुझे मूली पराठा ऐसा कुछ खिलाया, तो कुछ पराठा।
तो मैंने बोला बहुत स्वादिष्ट है, वेरी डिलिशियस, ये कहाँ से सब्जी आपको मिलता है? बोलता है सर, ओ मैंने बोला जो देखो इधर तो बहुत सारे डाकू अभी तक है ना। बोलते सर डाकू तो इधर है नहीं, है वागी था, मगर हमारा हाथ में, ये हाथ में अगर काम होगा, ये हाथ किसी को छीनेगा नहीं। वी डोंट वांट टू स्नैच एनीथिंग, अगर मेरे पास काम करने का हाथ है तो मुझे पीछे ले गया। मैंने देखा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, और वो किसी साइंटिस्ट और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हेल्प लेके नहीं कर रहा है। बोल रहे मेरा पिताजी बागी था, मेरा चाचा बागी था, आज वो लोग बागी नहीं है। और ये जो टेक्निक, जो वो फीड बना के रेन वाटर हार्वेस्ट से लेकर, जो उसका रिसाइकल, जो एक बूंद पानी का रिसाइकल कर रहा है, वो देखने का लायक है। क्योंकि उसका होटल चलाने के जो पानी लग रहा है, वो पानी वो फेंक नहीं देता, उसको रिसाइकल सेकंड टाइम वो रिसाइकल करता है खेती के लिए। वैसा देखिए किल्लत है, पानी का कमी है, इसलिए अच्छा हुआ है जो हम पानी को बचा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। ना मेरे पास गूगल है, ना मेरे पास बहुत कुछ साधन है, ना कोई इधर आके हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। मगर सर ये तो साल भर हम लोग सीखते हैं, जनरेशन से जनरेशन हम कर रहे हैं। तो ऐसा सब छोटा छोटा बहुत जगह मैंने देखा, जो आदमी को आज हम लोग नाम दे रहे। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, एक फॉग वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो फॉग से भी हम लोग पानी बना सकते हैं। ये नेपाल, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में बहुत होता है, इंडिया में अभी तक मुझे तो जितना पता है अभी तक हुआ नहीं। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फंड के लिए, क्योंकि वो मुझे फॉग नेट खरीदना है फ्रॉम जर्मनी। तो अगर वो होता है तो हमारा इंडिया में जो हिस्सा अबव 8,000 9,000 फीट, मगर बहुत सारे फॉग डेज होता है साल में, वो हम लगाएंगे। ये फॉग वाटर हार्वेस्टिंग भी बांग्लादेश और नेपाल में बहुत होता है सर। तो ठीक है सर। Yes, या I think you have given us some very wonderful examples. It makes me ashamed that what we call higher education and what we learn in terms of technology and what is actually available in rural India is एब्सोल्युटली not yet documented. दे And आर I ओपन यूनिवर्सिटी, दे आर ओपन यूनिवर्सिटी, जहां से शुरू करना चाहता हूँ वहां से पढ़ना चालू। and sir, I don't know whether you're documenting this. I think you need to take on some people who can assist you in terms of documentation of this. And I think the government is encouraging Indian knowledge systems and all this go into that. And I think it will make a huge difference if you can just add on that layer. A lot of people from universities will be willing to help you with a Thank you, sir. social cause. I think हम्म, this is something that you should pursue because all that you have learned, it should not evaporate, or maybe just हम्म, 5% of that is known and the rest is not known. I think you should be able to document it. सर Thank you very much, sir. I'll hand it back to Professor Rao. We are at about 7:29. यस सर, थैंक यू सर। Thank you very much, sir. The conversation is very interesting. Before I forget, I want to say one thing that all the stories that you are able to connect us to, they are all problem solved, the problems already solved, and these are best practices. यस And if documentation is the issue, I think we have our case research center, थैंक which यू सर। is uh, which is globally acknowledged, which is a very wonderful case research center. And our people write cases on sustainability. हम्म, And very recently, we have organized an international conference and workshop on on achieving sustainable development goals through our cases. And people from UK, US have come and attended these things. And I think our team can do a wonderful job in documenting and सर writing these stories. And it should be taken to the international level because the kind of work that you're doing, there is a very interesting model. The interesting model is step number one, you're driven by the motivation to do something to Mother Nature. That's the step number one. Step number two, you have taken the cycling to travel to them, which gives you a lot of flexibility to stop, pause, यस observe, connect to यस people, learn, and then the stories are known to you. And stories are not just stories, stories are problems solved. And that's why it's a story which is going to be used elsewhere. And you have very nicely connected these stories to other parts of the country also. Then you have involved youngsters, youth, school children, and they are the harbingers of change in the यस days to come. यस They are the angels, they are the दूत या for the future. एंड ऐसा एग्जैक्टली। करके आप इतने सारे स्टोरीज इकट्ठा कर चुके हैं
और इस स्टोरी के मुताबिक, इस जर्नी के मुताबिक आपने ये जो अवेयरनेस क्रिएट किया है वो तो सराहनीय है, बहुत बढ़िया है। मेरा थैंक एक ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मैं एक साथ पूछूंगा, उसके बाद मैं माइक ओपन करूंगा जो लोग हैंड रेज किया है। इस बार आज के लिए ये जो कॉन्वर्जेशन चालू है ये समय के बाहर भी जाएगा। मैं सबको ये अनाउंस करूंगा कि वी विल टेक लिटिल मोर टाइम and take all the questions and understand and learn from Mr. Samrat Malik. So the question number 1 is, सर आपका इनकम कैसा आता है, क्योंकि आपको ये सब जर्नी करना है और आपका ऑर्गेनाइजेशन कायम रखना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है, तो इनकम इज रिक्वायर्ड फॉर यू। आपका इनकम कहाँ से आता है, वो पहला प्रश्न है। और दूसरा, रिवर्स को इंटरकनेक्ट करना है, सारे रिवर्स को जोड़ना है करके एक बड़ा सा मूवमेंट चला था, न्यूज़पेपर्स में हम भी पढ़ चुके हैं और टीवी में कभी कभी चलता है, जून 5 के टाइम पे चलता है ये सब। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आपका टिप्पणी चाहिए ये इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द रिवर्स के बारे में। और थर्ड, साइकिलिंग करना इतना आसान नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग स्पेशली, आप लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, नॉट ओनली इट्स अ डिस्टेंस बट टेरेन भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके फिटनेस के बारे में और फिटनेस कायम रखने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ एक दो टिप्स हम आप हमको देंगे तो अच्छा रहेगा। दीज आर द 3 थिंग्स इनटू वन सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग सर, ओवर टू यू। सर, the first question is about my income. Sir, truly speaking, मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। जैसे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, और कहीं पे मुझे बोलने के लिए मौका जब मिलता है एज अ स्पीकर तो मुझे कुछ पैसा मिलता है। और यहाँ पे इंडिया में नेशनल ज्योग्राफिक और बीबीसी अर्थ, देन द चैनल 4, यूके डिज्नी, जो यहाँ पे उन लोगों का लाइन प्रोड्यूसर्स है, तो उन लोग स्टोरी रिसर्च करते हैं अपने आप उन लोगों के लिए, तो मैं उन लोगों के लिए स्टोरी रिसर्च करता हूँ। तो किसी महीना में मुझे कुछ 20,000 मिल जाता है, कभी 15,000 मिलता है, कभी 25,000 मिलता है। तो पैसा का अगर इनकम का बात बोले तो सर वो तो नेगेटिव में ही जाएगा। मगर एक चीज इस पे बहुत अच्छा हुआ है, मैं नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई द एंटायर फैमिली, मेरा बच्चे भी है, तो हम लोग ना सीख गया जो बहुत कम पैसे में आप कैसे बहुत अच्छा रह सकते हैं। तो जब एडवेंचर का बात करता हूँ तो लाइफ भी एक एडवेंचर ही है, अनसर्टेनिटीज है जो मुझे लगता है जो कल क्या होगा, कल मेरा घर में जो ट्रीटमेंट के लिए दवाई का पैसा चाहिए और डॉक्टर्स को दिखा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ऑलवेज आई रिमेम्बर अबाउट माई ड्यूटीज, और मैं माता नेचर को प्रे करता हूँ और मुझे पता नहीं हो जाता है कैसे। और ठीक है सर, इनकम तो ऐसे ही होता है बट इट्स नॉट स्टेबल। मुझे पता था, मैं जब नौकरी छोड़ रहा था तब मुझे पता था ऐसा दिन ही मुझे देखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है जो मेरा फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और इन लोग को सबको पता है जो बहुत कम पैसे में बहुत कम चीज में कैसे आप बहुत खुश रह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का बात किया है सर, आई एम सॉरी उसमें डिटेल में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। मगर स्टिल मैं बोलता हूँ जो ऐसा नहीं है जो इंडिया में कभी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ नहीं। अगर हम लोग बहुत साल पीछे चले जाए तो इंडिया ने, इंडिया के बाहर भी अगर हिस्ट्री का हम लोग पन्ने देखते हैं तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ है। मगर पर्सनली मुझे लगता है जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे एक नदी का अपना इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो एक्वाटिक लाइफ है तो उसपे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा। तो मुझे लगता है जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अभी तक बंद हुआ नहीं, शायद न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट विल स्टार्ट अगेन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मगर इसमें क्या होगा जो शायद इंडिया एज अ कंट्री तो कुछ अच्छे हो भी सकते हैं, मगर हमारे जो नेबर्स है उन लोगों के लिए तो मुश्किल और भी ज्यादा होगा। तो आई एम सॉरी अभी इस दिस दिस मोमेंट मुझे अंडरस्टूड, और भी ज्यादा इससे ज्यादा बोलना आई नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। इसका प्रॉस कॉन्स दोनों ही है। एंड थर्ड इज आपका जो साइकिलिंग फिटनेस का बात किया है सर। देखिए सर, साइकिलिंग मेरे लिए जस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मगर इसमें क्या है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस सिर्फ तो फिजिकली नहीं होता है, मेंटल एंड्योरेंस भी होता है। तो मैं अभी तक जो 17,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है अकेला, इसमें किलोमीटर इंपॉर्टेंट, हर किलोमीटर इंपॉर्टेंट है। जब लगता है जो अभी हो नहीं हो, मैं जा नहीं सकता हूँ, आई हैव टू लीव नाउ, तो मुझे लगता है जो एक छोटा सा पुश हो सकता है मेरा जिंदगी बदल देगा। क्या बदल देगा, मैं दूसरा नदी का और भी पास आ जाऊंगा। तो एवरी जो मेरा पैडल है ना वो काउंट करता है।
और मुझे लगता है जो फिटनेस के लिए एक मेंटल फिटनेस तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा सपना, जो सपने में हर कोई है, तो एक फिटनेस देता है, क्योंकि जब आनंद सबके लिए होता है ना, तब एक मेंटल फिटनेस आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। और दूसरा है जो फिजिकल फिटनेस। सर देखिए, मैं इंडियन हूँ और खाता हूँ सादा खाना। घर में चावल बनता है, दाल बनता है, हर बंगाली लोग मछली पसंद करते हैं, मछली खाते हैं। तो जो हम खाते हैं ना उसमें, अगर हाँ, ऑयल शुड बी अवॉइडेड। और एक चीज है, शुगर बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। सॉल्ट बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। और ऑयली फूड को डेफिनेटली, इसको जितना हो सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड में होना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। जो हमारा इंडिया में, हमारा जो क्षेत्र विशेष में, एक एक प्रोविंस में जो हम लोग बहुत साल से खाना खा के आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, वही हमारे लिए ठीक है। और फोर्थ है सर, कंफर्ट को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। किसी ने ड्राइव कर रहा है कार और मोटर बाइक, तो उसमें कंफर्ट मिल जाता है। तो रियली एक एक दिन अगर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कोई बंदा पैदल चलेगा, तो आप यहाँ फिट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट है आपका जो डाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा है जो आपका एंड्योरेंस, वो बहुत ज्यादा करना चाहिए। तो अगर ये दो चीज दिमाग में आ गया, तो फिजिकल फिटनेस कोई रोक नहीं सकता है। बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम लर्निंग टू सर। लिव विथ मिनिमल इनकम, जितना है उसी में काम चलाना है, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। आई थिंक simple living and higher level of higher order of thinking is what is happening here. That is the first point. Second one is endurance of physical mental endurance, or diet, good diet, no salt, no sugar, no oil kind of a diet. This will give good fitness. Wonderful sir. I am also a cyclist, that's why I asked you that question. So सर, वो आई बहुत वांट अच्छा टू, लगता है। हाँ, बोलिए आई सर, जस्ट बोलिए सर। वांट टू ऐड अनदर थिंग। जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, जो ये जो साइकिल एक्सपीडिशन हो रहा है, तो प्री कोविड उसमें स्पॉन्सर्स आराम से मिल जा रहा था। पोस्ट कोविड मिलना मुश्किल है। आज मैं कहाँ से मुझे पैसे मिलता है जाने, जब ड्यूरिंग माई एक्सपीडिशन मैं दिन में एक बार खाना खाता हूँ, सिर्फ एक बार। जब मुझे ज्यादा फूड चाहिए, मगर मेरे पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, जो आप ना, जो घर का गोल्ड है, वो मॉर्टगेज देके पैसा लेके मैं जाता हूँ। ओ। तो क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे देखना है। और मुझे पता नहीं है जो कितना बड़ा कॉर्पोरेट में जाके क्या करने से, आई एम सॉरी, अगर, क्योंकि मुझे पता है जो अगर कोई पैसा नहीं देगा, आई हैव टू अरेंज माई सेल्फ, क्योंकि पैसा तो लग जाए सर। बिना पैसा तो आप फ्लाइट पकड़ नहीं सकते, इवन इंडिया में तो वैसा Awesome, sir. होता है। Awesome. तो Awesome. होता है बस। तो I've, स्ट्रगल्स, I've, एंड्योरेंस होता है ना, एंड्योरेंस ऐसी तो तैयार होता है। I have understood the power of your passion and dedication to this thing. That even if it is required to mortgage home gold, या you will do that and make sure that your passion runs brighter and the wheels of your cycle keep running so that you can connect to these masses and understand their feelings and stories. Wonderful, sir. We will now open the mic to three interesting individuals who have asked questions. I request Mr. Benedict Parmanand to open his mic and talk his question. Good evening and congratulations, Samrat ji, नमस्कार। all your stupendous work. मेरा पहला क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है कि सर। आपका इंस्पिरेशन बुक से हुआ। हाँ। तो हम, जो मैं काम करता हूँ वही सर। काम करता हूँ। अच्छा। मतलब लोगों को बुक्स और ऑथर्स रीच करता हूँ। मतलब अच्छा। make people access, connect authors and readers and make them to read more. So हमारा टैगलाइन है read more, do more. अच्छा। अगर आप पढ़ते हो तो ज्यादा काम कर सकते हो। तो एकदम। हम वो करते हैं अभी। सो आपके नेक्स्ट प्लान में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन या बुक सर्कुलेशन वो कीजिए। तो वो there are many free libraries and there are many places where you can access some of these environmental and nature books ले सर, सकते हैं। तो excellent, thank you very much sir, that's sure. that's the way you can inspire more people to become like you. So that's the point I wanted to make. The other point is Professor Anil Gupta है, IIM अहमदाबाद के, उनके हनी बी नेटवर्क, मतलब उनका ग्रास रूट इनोवेशंस का एक, क्या बोलते हैं, इट्स एन एपी सेंटर। तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। थैंक यू तो सर।
हाँ, तो वो आपको आपके साथ काम करने से वो आपके लिए थोड़ा ये कुछ स्कॉलरशिप या इनकम वो भी करवा सकते हैं, ताकि आप काम ज्यादा रेगुलर कर सकते हैं, ज्यादा हाँ। चिंता करने की जरूरत नहीं हम्म, पड़ेगा पैसे के ऊपर। हम्म, हम्म, जस्ट वन लास्ट पॉइंट इज, ये सब प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट डिमांडिंग देयर यस, राइट टू यस, क्लीन वाटर। यस। तो ऐसे है कि नहीं, हम एक्टिविस्ट बन के झगड़ा करने का नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। but the sense of you ask your local politician, your corporators, that I have a right to clean water. What are you doing? यस, अच्छा, तो वैसे करने से चेंज आएगा, नहीं तो जितना भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करके, उनका प्रोजेक्ट पे डिपेंड करके, तो ये बहुत साल लग जाएगा। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट और 100 साल हो जाएगा। एग्जैक्टली। है ना? या सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। सर, सर, थैंक यू सर। जस्ट आई वांट टू ऐड अनदर पॉइंट। आप जो बोला है वही मैं बोल रहा हूँ। जब हमारा इंडिया में गैस, कुकिंग गैस और पेट्रोल डीजल का भाव ज्यादा हो जाता है, हर कोई हम लोग गुस्सा हो जाता है। हाँ, हम लोग कभी पार्लियामेंट के सामने बैठ नहीं जाते हैं, मगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाता है जो आम आदमी गुस्सा हो गया, ठीक है ना। तो जब हम लोग को प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट हम लोग डिमांड करेगा ना, एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर कोई डिमांड करेगा। नहीं मिल रहा है, हम लोग गुस्सा होगा अंदर अंदर में ना, तो पॉपुलर गवर्नमेंट को भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा अभी टाइम आ गया, इसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर में आ जाओ। दैट इज वाई पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो पब्लिक अवेयरनेस किसी का हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देने से नहीं होता है। ये होता है जब बच्चे घर में जाके बोलेगा, पापा आज ना ऐसा पानी को ये बोलता है, मैंने नहीं सिखाया। इससे सर, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक क्लीनिंग करते हैं जगह जगह में, हर स्टूडेंट्स करते हैं। जब उन स्टूडेंट्स को पिताजी और माताजी देखते हैं ना, जो गंदे जगह में मेरा मेरा बच्चे जा रहा है विद ग्लोव्स एंड प्रॉपर सब पीपीई लेके, मगर वही प्लास्टिक ये लेके आ रहा है, तब ना बाबा माँ भी पिताजी माताजी फेंकना बंद कर देते हैं। बिकॉज वो उन्हीं के बच्चा नेक्स्ट वीक में जाके फिर से वही काम करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, किसी का हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना नहीं है, मूवमेंट एक्टिविस्ट कुछ करना नहीं है। प्रेम से, आराम से, सिर्फ अंदर जो है हमारा ज्योति जो है उसको जलाना है, बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। Right. Wonderful, sir. Wonderful. I think you have added many points to how the movements can become much more forceful, how we can start demanding what is our rights, and therefore creating this awareness with young students so that they go and create that impact in their families. And then the chingari of this kind of awareness will keep Yes. on spreading across all the families and thereby across all citizens. Wonderful, sir. I'll also thank Mr. Benedict Parmanand for connecting readers and authors and championing the cause of ESG for several years that I have known. I think over the last 10 years, Mr. Benedict has been creating these harboring authors and readers under one roof in Bangalore. Publishing Sustainability Next magazine. Oh, fantastic. You can write these stories also, Mr. Benedict. Yeah. Thank you so much for offering your suggestions as well. I would also love to get that connect to Professor Anil Gupta, and then I'll pass it on to Mr. Sure. Samrat Malik. Thank you so Thank much. you. I'll request Dr. Pyali Chatterjee to ask her question. Are you there, Dr. Pyali? Yes, sir. Good morning. Good evening, sir. Good evening. You can ask in Hindi or Bengali. Yes, Choice is sir. yours. सर थैंक यू सम्राट सर। आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपका जो भी आप कर रहे हो काम, इवन बाय बर्थ आई एम बंगाली सर। वेलकम मैं मैम। हुगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मम्मी हाँ। बर्धमान से हैं, हाँ, बट बाय माय बॉट ऑफ मैं अरुणाचल से मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है। ओह, सो आपने जैसे चाइना के बारे में कहा, अरुणाचल का जो एनवायरनमेंट के बारे में कहा, आई कैन रिलेट दैट। एंड अनदर थिंग इज दैट सर, अभी आपने जो ट्रैफिकिंग के बारे में आप बता रहे थे, आप लड़कियों को स्किल सिखा रहे हैं ताकि उनको आगे जाके रिहैब करने में ये ना प्रॉब्लम ना हो। सर आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक्चुअली कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय आप ह्यूमन राइट्स नॉ नेटवर्क के बारे में सुनेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन एनजीओ। तो मैं उनके साथ वॉलंटियरली बहुत काम मैंने किया है लॉन्ग टर्म में वहां पे रहते समय। सो ड्यूरिंग वन इंसिडेंट वहां पे सोनागाची से उन्होंने एक लड़की को रेस्क्यू किया था सर, HRN वाले। बट 2 बार उनको रेस्क्यू किया गया और दोनों बार ही वो लड़की वापस चली गई।
बिकॉज जब भी किसी लड़कियों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है, ये उनको रिहैब करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एक ऐसे जगह से आते हैं, उनको लगता है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं वो करेक्ट। वापस उसी जगह पे ही जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वही उसका प्लेस हो गया है, वो नॉर्मल हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन क्या आपने फेस किया है सर? और आप कैसे सर, टैकल करते हो इस सारे प्रॉब्लम्स? और यस फंड मैम। का लेके तो सर ने ऑलरेडी पूछ लिया है, क्योंकि मुझे भी वो जानना था कि सर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बिकॉज दिस इज ए ह्यूज टास्क। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सर, प्लस सबको उस तरह से केयर प्रोवाइड करना, जो नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करना, इट इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई सैल्यूट टू यू फॉर दैट कि आप ये चीजें कर रहे हो। मैडम, बात यही है, जब पॉइंट किया है, सही किया है, और वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। अभी जैसे ये ट्रैफिकिंग का बात हो रहा है, आई जस्ट मेंशन इंस्पेक्टर इंचार्ज हावड़ा वुमेन पीएस काकुली घोष कुंटू, शी गॉट द प्रेसिडेंस अवार्ड इन 2022 प्रोबेबली। हम लोग ऐसा करते हैं, जो ट्रैफिकिंग होके हम लोग फिर वहां उसको लेके आया काकोली ने, ठीक है, 2 दिन बाद फिर से वो चला जाएगा, क्योंकि शी नीड्स सोशल सिक्योरिटी, और फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग होना है, नहीं तो डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक महिंद्रा और ऐसा बहुत सारे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट्स है जो हम लोग से ये लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। नंबर 1, हमारा 3 लड़की इस साल एक साथ लॉ पास किया है, ताकि वो कल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए वो भी विदाउट एनी फीस वो लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग उन लोगों को रॉक क्लाइंबिंग में भेज रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस सिर्फ हॉरिजॉन्टल चैलेंजेस नहीं है, वर्टिकल चैलेंजेस भी है। वर्टिकल मींस योर फैमिली। अगर माँ या बाप ऊपर रहते हैं और किसी का बाप रेप कर दिया बच्चे को, बाद में उसको बेच दिया है, ऐसा सिचुएशन भी हम लोग फेस किया है। बोलने में क्या होता, जो वो निकल जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को, ऐसे भी देखा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग को पढ़ाई कर रहे हैं, और इतना दिन था क्या, ये लोग रेस्क्यू चाइल्ड को क्या सिखाते हैं, सिलाई, कागज का कुछ बनाना नहीं। वो लोग जाके एक आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेगी। वो एनवायरमेंटल लॉ पढ़ेगी, शर्त यही है तुमको पढ़ना है। वो एनवायरमेंटल लॉ पढ़ेगी, जितना इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रहे हैं उसका अगेंस्ट में तुम लड़ोगे। तो पैसा बहुत जरूरी होता है, यू आर राइट। हम क्या कर रहे हैं अभी, लोकल किसी ने किसको बोला कि भाई इस महीना में मुझे 4 लड़की को ऐसा जगह ट्रेनिंग भेजना है। जैसे इसमें हम लोग IIM जोका में लीडरशिप ट्रेनिंग हुआ है, तो 3 दिन का क्लास था, तो पैसे चाहिए। तो हम लोग मांगते हैं किसी को, जो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसे दे दो, तो दे दिया। तो सपोज इस महीना में मैं 500 रुपया दे दिया, काकुली ने 2000 दिया, 2500 हो गया, मतलब एक किसी को हम लोग देख सकते, एक तो हो गया। तो ऐसा करते 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 हम हर महीने में, हर सेकंड पे हमारा चैलेंजेस होता है, हम लोग पैसा कहाँ से मिलेगा। सो मैं तो ही बोल रहा हूँ, जो घर का जो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है तो छोड़ दीजिए, मेरा फैमिली और भी बड़ा है, तो वो सोचते मेरा टाइम नहीं मिलता है, मेरा घर का क्या हो रहा है। तो फंड एक प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मगर आपके मैं सीधा बोल सकता हूँ, ऐसा कहीं से फंड नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा जहाँ पे 20% 30% रिश्वत देना पड़ता है। अगर वैसा फंड अगर मिला तो मैं काम ही छोड़ दूंगा, मैं कोई एनजीओ से नाता नहीं रखूंगा। क्योंकि मुझे लगता है अगर एक लड़की को, ट्रैफिक लड़की को अच्छी जिंदगी देने के लिए अगर हम लोग राह दिखा सकते हैं, वो भी ऊपर वाला का आशीर्वाद, नहीं तो मेरा कैपेसिटी कहाँ है। मगर वो उसको पता होना चाहिए, जो सम्राट सर, काकुली मैडम जहां से पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया, वो सही पैसा है, जो व्हाइट मनी कहीं से इधर उधर करके लेके नहीं आया। तो चैलेंजेस उसमें और भी बढ़ जाता है, मगर मुझे लगता है जो हम लोग कभी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पैसा कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। Yes. दुनिया में बहुत अच्छा आदमी भी है सर, Thank you, मैडम। sir. Thank you, sir. Thank you very much for your patient response. Thank you. Thank you, Dr. Pyali. And we will now quickly move. Mr. Chainulu, you wanted to ask a question. Please briefly open your mic. And the question that he wanted to ask is, political personalities should also think about global warming instead of putting just on paper. They should encourage NGOs like yours to get the same. What steps we have to do so that we can bring all the political parties together, irrespective of their party name, on one agenda? You have any suggestions, sir?
जी सर इसमें है जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है, मैं सब पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा हूँ। जो पश्चिम बंगाल में जो जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई किया है इलेक्शन में, सबका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ चुका हूँ। इसमें एक पार्टी को छोड़ के बाकी पार्टी में इतना कुछ है ही नहीं मेंशन। अभी बात है सर, मुझे जितना लगता है जो पॉलिटिकल पर्सन मिलकर तो पॉलिटिकल पार्टी होता है, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड ऑल, उसमें मुझे इंडिविजुअल नजर आते हैं। मतलब दोज वर लीडर्स जो लीड कर रहे हैं, दे विल नॉट एवर, क्योंकि वो लोगों को शायद डेटा बहुत सारे मालूम है, मगर उन लोगों को फिक्र नहीं है जो जो देश में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कल मैं गवर्नमेंट चलाऊंगा, मेरे पास पावर रहेगा इंडिया को आगे जाने के लेके जाने के लिए, बट वो लोग एवर है ही नहीं। और पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे चीज में इतना बिजी है। देखिए सर, जो जहां जो दुनिया में हमारा तरक्की, हमारा डेवलपमेंट आप इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर बेस करके बनाते हो, उसमें पैसा आखिर में बात करता है। द लास्ट वर्ड इज मनी। तो जब मैं जीडीपी बात करता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में सोच रहा हूँ ऐसा, मगर एक्चुअली है नहीं है ऐसा। Great. मेरा Yes. एनवायरमेंट कैसा है, मैं तो थोड़ी देर पूरा दुनिया देखा नहीं, देखा है ना। तो मैं, मेरा चारों तरफ जो जो इकोसिस्टम में मैं बैठता हूँ वो कितना अच्छा है, उसका नापने के लिए कोई यर्स्टिक है क्या हमारा? नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज मोर इनटू जीडीपी और कि कहां से फंड लेके वो आएगा, ये सब में। तो मुझे लगता है जो एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव अ प्रॉपर विजन अबाउट द मदर नेचर, जो लास्ट अगले 10 साल में 50 साल में क्या करना चाहते हैं वो शुड हैव। मगर हम लोग को डिमांड करना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो में है ही नहीं। जब तक हम लोग एवर नहीं होगा, उन लोग का मैनिफेस्टो में नहीं आएगा, उन लोग का प्रायोरिटी में कभी नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी आप छोड़ दीजिए, आई कंसिडर देम एज अ सिंगल इंडिविजुअल जो एवर नहीं है। डेटा हो सकता है मगर दे आर नॉट एवर। Right, sir. Right. Wonderful, sir. I think we've had more than 1.5 hours of wonderful conversation this evening. We थैंक यू will सर। stop it here, but या the lessons are immense. We are taking away three important broad lessons apart from what I have spoken. A couple of years back, I studied one story where plastic bottles are removed from the beaches of a country, a foreign country. And आपने जो बताया वो story, वो बहुत बड़ा सोशल कैंपेन था। एक तो प्लास्टिक बॉटल्स उठाना है, और दूसरी बात है वो प्लास्टिक बॉटल्स उठाने के कारण से उनको थोड़ा इंसेंटिव मिलता है, एक प्राइज मिलता है। वो वाला कैंपेन आप जो इंडियनाइज किया है और आपने चलाया है, आई एम श्योर इट इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इवेंट। आई थिंक इट वाज सक्सेसफुल इन द फॉरेन सॉइल आल्सो, एंड इट विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर एज वेल। बट यस चाहिए आप जैसे लीडर के जरूरत है, आप जैसे लीडर जो ये प्रोग्राम बनाएंगे, हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज जो है, हम जैसे यूनिवर्सिटीज आपको सपोर्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे, और ऐसे कैंपेन्स में हम भी शामिल हो जाएंगे। आप जरा बता दीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे। दैट्स द फर्स्ट टेक अवे। सेकेंड टेक अवे इज द बेस्ट वे टू रीबिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम in a downtrodden person, a person who is violated, inflicted by injury, personal, physical, or mental. The best way to build strength into that person is to take them to the wildest possibilities. For example, an outing in the wilderness, an outing in like rock climbing, mountaineering, living with the wild. Then usse kya hota hai, you push your boundaries. The whole यस life is about pushing your boundaries. Isse zyada kya hoga, सर। you know? So from extreme adversity you are trying to build in a strength, a resilience to fight back, and then everything else will be positive after that last point. So you come back from that last most adverse point to something much much better. So take them to wilderness camps, take them to mountaineering, take them to rock climbing, push their boundaries. They become solid and steely inside, and then they will take on best of the professions, and such individuals will actually prove themselves, bounce back, and tell the world that I can also work in IT sectors, I can also work in high paying jobs, I can also do value added jobs, यस not just stitching and cooking and plantation and things like that. I can also do white collar jobs, I can also do यस high paying
high Yes. learning jobs, knowledge level jobs, which are erstwhile thought that it is only for the people who study in cities. I can lead my nation. Yes. That's fantastic, sir. That's a great takeaway. And the third and the most important thing is we need to read the manifestos of these political parties. Nobody reads the manifestos. We vote without actually reading the manifestos. You have rightly identified, sir. We should read the manifestos and we should start demanding what is your action plan for climate? What is your action plan for Mother Nature for the next 10 years? Specific bullet points of action if you come Yes. to power. The more we demand, the more is the chance that they will include it. Yes. The more is the chance if they include it in agenda, greater is the chance that they will implement it. Probably, if it is said 100 times, one time they will implement it, and it's a long journey. As you have proven with your journey on cycle, it is tough, but it helps you connect with the root causes. The ground will you are very close to. You keep your eyes and ears open to the ground, and you learn what is actually happening there, and spread that problem solving abilities and those creative solutions for the rest of the country. Wonderful, sir. Thank you for connecting with us and sharing this wonderful time. I have enjoyed, I'm sure, along with me, all the participants who have joined today on Zoom as well as on Facebook Live have enjoyed this conversation. I'm sure they have many questions. We will write those questions to you. I will keep in touch with you. Sir. And here I've talked about the Case Research Center at ICFI. That also we will connect you. Wherever you are, sir, you are in Kolkata, for example, we have ICFI Business School in Kolkata, Salt Lake Sector 5, and in any other part, Northeast, we have 5 universities. So we will connect and work together, collaborate, and try and see what best we can contribute to the mission that you are embarking on. Always we will try and work with you and learn from you. Thank you so much for this wonderful times. Namaskar, sir. Pranam. Namaskar, sir. I want to also thank all the members who participated and raised wonderful questions and made this conversation worth its while. Thanks for joining. Have a great weekend and good night. We'll come back on July 12th with yet another leader and a very interesting topic. Till then, read more about the River Cyclist, which you have heard just now. Go to his website, The River Cyclist, and understand the expeditions and what are the micro level impacts one has created at every step and every expedition. It is always measurable, but only when you go and observe and read more, you will understand how much impact has been created. A little bit of inspiration for all of us is needed, wanted all the time. Have a great reading of that site, The River Cyclist. Once again, great weekend and good night.